So, hello everyone, I hope you are doing well. For those who don't know me, my name is Anshika and I have scored 96% in my class 10th boards. In today's video, I will be telling you how you can complete your science syllabus in just 7 days in a week. Okay, so this video is going to be the most requested and the most amazing one because you can complete your whole science syllabus in just 7 days. Okay, so without any further ado, let's get started with the video. I know you must be struggling. There are people whose syllabus is completed 30%, 50% or 70% and who wants to complete it to 100%. Okay, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जिन्होंने शुरू भी नहीं करा है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर ऑल. जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा है वो इसके साथ कर सकते हैं, और जिनका 100% भी कंप्लीट हो चुका है, लाइक बोथ द एक्सट्रीम्स आई एम टेकिंग इन अकाउंट. सो इफ़ अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है तब भी आप इसके साथ रिविजन कर सकते हैं डेफिनेटली. ओके, so this is going to be an amazing video, and yeah, let's get started with the video without any further ado. So ये 7 days का आपके लिए चैलेंज रहने वाला है, एंड इन 7 days में आपको सारे चैप्टर्स बताए जाएंगे. इस दिन पर आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड क्या आपको एग्जैक्टली किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव इन साइंस. सो आई विल बी टेलिंग यू दैट टू. Okay, so first on day 1 you are going to complete chemistry. Chapter 1 chemical reactions and equations, and chapter 2 acid bases and salts. So day 1 पर आप ये दो chapters complete करने वाले हैं, और इन दो chapters पर you will give more focus towards read NCERT thoroughly. You have to read NCERT thoroughly for day 1 and write and practice balancing equations because it's really important and question definitely आएगा balancing equation से. सो यू हैव टू राइट, उनको याद करना है, उनको लिखना है. बैलेंसिंग इक्वेशंस को इंपॉर्टेंट रहने वाला है बहुत. ओके, देन वी हैव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने. यू हैव टू देन टेक्स्ट क्वेश्चंस, द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस विच यू कैन फाइंड इन एनसीईआरटी. यू हैव टू प्रैक्टिस देम. देन जो आपने चैप्टर पढ़ लिया है, पहले आपने लेक्चर लगाया था, देन आपने चैप्टर रीडिंग करी होगी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, देन यू हैव टू क्वेश्चंस. सो अब आप की पॉइंट्स जो आपको उस चैप्टर की रीडिंग के दौरान मिले थे उनको आप रिवाइज करने वाले फॉर द होल डे. ओके, yeah, then on day 2 you have chemistry again. So आप 2 दिनों में chemistry complete करने वाले. That is on day 2 you are completing chapter number 3, that is metals and non-metals, and chapter number 4, that is carbon compounds. Okay, so these 2 chapters you are going to complete. Your focus must be on reactivity series and on properties of metals and non-metals. It's really important from board's perspective because previous year question में भी ये चीज़ बहुत repeat हो रही है, so you have to focus on that. Okay, एंड आपका इसी के साथ आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है विद इन 2 days ओनली. ओके, सो इट्स अ थिंग ऑफ सेलिब्रेशन. ओके, सो ऑन डे 3 यू आर स्टार्टिंग विद बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 5 दैट इज लाइफ process, and chapter number 6 that is control and coordination. I know life process is a bit hectic chapter, but आपने अभी तक कुछ तो डेफिनेटली पढ़ा ही होगा. You have given your pre-boards, your half yearlies, your PTs, your periodic tests and monthly tests and exams. So yeah, आपको कुछ तो डेफिनेटली आता ही होगा. So you have to just watch the lecture and then read NCERT line by line. Okay, so डेफिनेटली आप कंप्लीट कर सकते हैं because it's high time अगर आप पढ़ना शुरू कर दे तो. बिकॉज अभी तक अगर आपने कुछ नहीं करा है, थोड़ा करा है, फिर आपको पता है कि आपने बहुत कम चीज़ें पढ़ी हैं या फिर आपने अपनी तरफ से अभी तक 100% नहीं दिया. So it's your last chance. You can complete your syllabus, whole science syllabus in just 7 days. Okay. On day 4, you will be completing chapter number 7. That is how do organism reproduce, and chapter is that is heredity and evolution. In these particular chapters, you will be focusing on short note on DNA, RNA, etc., and the Mendel's law and things like that. So you have to focus on particularly like on topics पर जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं बोर्ड्स में. हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिपीट हो रहे हैं, उनको डेफिनेटली आपको देखना है. और ओके, on day 5 you will be completing with physics, that is chapter 9 light, and chapter number 10 human eye. From light you will be focusing on mirror formula, lens formula, and then we have dispersion and things like that. अगर आप 11th में PCM लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन दोनों चैप्टर्स पर, मेनली लाइट चैप्टर पर फोकस डेफिनेटली करना चाहिए बिकॉज सेम चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है. सो या ओके, ऑन डे 6 यू विल बी स्टार्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये तो डेफिनेटली 11th के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ये बेस बना रहे हैं हमारी 11th और 12th की फिजिक्स का. सो इनको तो आपको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से इन दोनों चैप्टर्स को तो कंप्लीट करना पड़ेगा. यू हैव टू रीड, like first you will be watching lectures, then you will be reading NCERT's text book,
एंड फिर आपको जो फॉर्मूलाज है उनकी एक शीट बना लेनी है, 1 या 2 पेज पे सारे फॉर्मूलाज फिजिक्स के ख़त्म कर दो, लिख दो, फिर इनको अगेन एंड अगेन रिविजन करो और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर उठा लो, अपने एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट है हमारे पास, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है, यू कैन डू दैट। सो आपको वो क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब आप 6 दिन तक, 6 डेज तक यू हैव स्टडीज रेगुलसली। आपने 6 दिन तक बहुत ज़्यादा पढ़ा है और टफ चैप्टर्स भी कंप्लीट करें। सो 7th डे 7 इट्स गोइंग टू बी रियली इजी वन, दैट इज़ आर एनवायरनमेंट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में फूड चेन है, वेब चेन है, एंड देन वी हैव इकोसिस्टम एंड थिंग्स लाइक दैट। सो आपको वो चैप्टर्स कंप्लीट करना है, वो टॉपिक्स पर पर्टिकुलरली ध्यान देना है। और वैसे तो ये बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करने वाले नहीं हैं। अगर हम बात करते हैं लाइक 7 डेज़ का चैलेंज, तो आपको पता चल गया कि आपको किस दिन पर क्या चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। लेकिन मेजर थिंग जिस पर आपको फोकस करना है, नंबर 1 दैट इज़ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यू हैव टू रीड इट लाइन बाय लाइन। नंबर 2 दैट वी हैव इज लेक्चर, आपको लेक्चर लगाना है, कोई भी आप हाफ आवर का लेक्चर लगा लो, 1 आवर का, 1.5 आवर का, लाइक वन शॉट देखना है। अब डिटेल में जाने का वक्त आपके पास नहीं है, यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड इट अ लॉट। ओके, सो एंड थर्ड थिंग यू आर गोइंग टू डू इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड द बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, खुद से ट्राई करोगे करने का, अगर नहीं हो रहा है तब आपके सोल्यूशन पर आप यू कैन जंप ऑन द सोल्यूशंस और द आंसर्स ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चंस। सो इन दिस वे यू विल बी कंप्लीटिंग योर होल साइंस सिलेबस इन जस्ट 7 डेज और अ वीक। ओके, अभी तक और लाइक मैं आपको पर्टिकुलर डेट्स नहीं बता रही हूँ किस दिन पर ये आपको चैप्टर कंप्लीट करने। यू हैव 7 डेज, दिसंबर के किसी भी दिन में आप ये 7 दिन निकालो और साइंस सिलेबस को कंप्लीट कर दो। इट विल ईज योर स्ट्रेस एंड योर थिंग्स। ओके, सो आपको फिर टेंशन कम हो जाएगी कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो मेरा ऐसा है जिसमें मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, और साइंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वैसे भी एक कोर सब्जेक्ट है एंड काफ़ी ज़्यादा आपकी मेहनत और हार्ड वर्क मांगता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। और बात फिर ये भी है कि यू नो उसमें प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो आपको रीडिंग एनसीईआरटी की लगाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और ऐसे ही आपको अगर मैथ्स और एसएसटी की वीडियोस भी चाहिए 7 डेज और मे बी 10 डेज चैलेंजेस, सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और okay, so now we are just concluding this video. I hope you like the video, and if you have really liked the video, you can subscribe to this channel, share this video with your friends so that you can help them too. And अगर कोई भी आपको query, कोई भी problem you are facing, you can directly ask me in the comment section and I will be replying to that. So yeah, that's it for today's video. एंड कोई भी आपको रिक्वेस्टेड वीडियो या फिर आप कुछ चाहते हैं कि दीदी इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर चैप्टर और मे बी इस पर्टिकुलर क्वेरी है मेरी, उस पर आप वीडियो बना दो, सो आई बी ग्लैड टू नो अबाउट इट एंड आई बी मीटिंग यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू अमेजिंग वीडियो. So yeah, all the best for your pre-boards and your boards again. Okay, thank you.